Greetings, students. Hi, this is Satyaki Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's subject is human rights, and the topic that you're going to discuss is international protection of human rights. And this is meant for BLLB fourth sem students. Let us look at the introduction of international protection of human rights. It has over time been widely accepted as the fundamental norms of human rights that everyone should respect and protect. The UDHR, together with the International Covenant on Civil and Political Rights and its two optional protocols, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, form the so-called International Bill of Human Rights. In the coming classes, we will be discussing in details about the Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. But apparently, what you should know is that these two combine to form what it is called as International Bill of Human Rights. So international law जहाँ पे हर व्यक्ति को respect मिलना चाहिए, जहाँ पे protection मिलना चाहिए from any form of arbitrary use of power or abuse of any persons where their fundamental right is infringed. जब फंडामेंटल राइट छीना जाता है, बेसिक राइट्स छीना जाता है, उससे एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनको हर तरीके का रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है, जो बेसिक राइट्स है, वो अपहेल्ड हो. So let us take a peek at the international protection on human rights. Series of international human rights treaties and other instruments were adopted since 1945, which have confirmed legal form on inherent human rights and developed the body of international human rights. Other instruments have been adopted at regional level, reflecting the particular human right concerns of the region and providing for specific mechanism and protection. So, if we look at the history of human rights, Second World War के बाद 1945 के बाद UN फॉर्म हुआ. UN ने काफ़ी सारे बॉडीज़ बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इनहेरेंट जो ह्यूमन राइट है उसको प्रमोट करेंगे, उसके लिए प्रॉपर काम करेंगे कि ह्यूमन राइट्स प्रमोशन हो, पीस, ट्रैंक्विलिटी, प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड वाइड रहे, इसका कोई भी तरीके से जेपरडाइज ना हो. और रीजनल लेवल में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्ट्रूमेंट्स भी बना हुआ है जो ह्यूमन राइट के अपलिफ्टमेंट के लिए हर एक रीजन में काम करते हैं, और वर्कफोर्स भी है जो इसको प्रमोट भी करते हैं. सो मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अदर लॉज which formally protect human rights. While international treaties and customary laws form the backbone of international human rights law, other instruments such as declaration, guidelines, principles adopted at the international level contribute to its understanding, implementation and development. Respect of human rights requires establishment of rule of law at the national and international levels. So, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि स्टेट लेवल में देखिएगा आप लोग, रीजनल लेवल में भी देखिए काफ़ी सारी बॉडीज़ है जो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं. इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, कस्टमरी लॉ भी बना हुआ है, इंटरनेशनल लॉज भी है, डोमेस्टिक लॉज भी है जो इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करने में सहायता करता है कि लोगों के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स छीना ना जाए, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स है वो बरकरार रहे. काफ़ी सारे गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है, डिक्लेरेशन भी है इंटरनेशनल लेवल में जो कंट्रीब्यूट भी करते हैं ह्यूमन राइट्स को समझने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी. और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स और द रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. जब रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स होगा तभी रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स होगा, और तभी ये सहायता करेगा, ये जो रूल ऑफ लॉ है जो इंटरनेशनल और नेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है और प्रिवेल करने में सहायता करता है, इनको एक मोनूमेंटल फिगर बनाने में. So international human rights lays down obligations which states are bound to respect. By becoming parties to international treaties, states assume obligations and duties under international law to respect, to protect and fulfill human rights. So ये जो international human rights के जो treaties होते हैं ये obligate करते हैं states को कि वो उसको respect करे और they are bound to follow those rules and regulations made at international level. और जब एक international convention होता है उसमें बहुत देश एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और वो ट्रीटीज़ को मानते हैं, और ऑब्लिगेटरी होता है ये ट्रीटीज़ जहाँ पे उनको वो ड्यूटीज़ फुलफ़िल करना पड़ता है, वो लॉ को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन राइट्स की फुलफ़िलमेंट के लिए कि लोगों को कोई भी तरीके का
उनका राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. So, the obligation to respect means that state must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human right. The obligation to protect requires states to protect individuals and group against human right abuses. The obligation to fulfill means that state must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. तो जब हम यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, एक चीज़ हम लोगों को समझना है कि ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पेक्ट देना. और किस चीज़ को रिस्पेक्ट देना? ये जो इंटरनेशनल लॉज है, डोमेस्टिक लॉज है, जो इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ह्यूमन राइट्स को प्रिवेल करते हैं, इनको रिस्पेक्ट देना. इसके मतलब किसी से भी, कोई भी व्यक्ति से ह्यूमन राइट्स छीन ये लोग नहीं सकते हैं. ह्यूमन राइट्स सबके लिए है, सब ह्यूमन राइट्स एंजॉय करेंगे, तो स्टेट उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे. वो जो इंटाइटलमेंट है ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करना, उसको ये लोग छीन नहीं पाएंगे. और ये जो ऑब्लिगेटरी है, ये स्टेट प्रोटेक्ट देते हैं इंडिविजुअल्स को कि उसका ह्यूमन राइट्स कोई वायलेशन ना हो, उसका कोई किसी तरीके का अब्यूज़ ना हो. सो द ऑब्लिगेशन इज़ टू फुलफिल दैट स्टेट मस्ट टेक पॉजिटिव एक्शन. स्टेट पॉजिटिव एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है, और फैसिलिटेट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है और जो लॉज बना हुआ है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे, ह्यूमन राइट्स प्रिवेल हो, लोग इसको एंजॉय कर पाए, और कई तरीके का, किसी तरीके का अब्यूज़ ना हो. और ये अगर अब्यूज़ होता भी है तो फिर ये स्टेट नेसेसरी इमीडिएट स्टेप लेंगे. Through ratification of international human rights treaties, government undertake to put into place domestic measures and legislation compatible with the treaty obligation and duties. Where domestic legal proceedings fail to address human rights abuses, mechanism and procedures for individual complaint or communications are available at the regional international level to help ensure that international human rights standards are indeed respected, implemented and enforced at all levels. So, last but not the least, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है, इन अकॉर्डेंस टू द इंटरनेशनल लॉ मेड, ये लेजिस्लेशन में भी डोमेस्टिक लॉज बनाते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ और जो डोमेस्टिक लॉ बनाएंगे वो कंपैटिबल हो, कि जो लॉ ह्यूमन राइट्स को प्रिवेल कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहा है इन इंटरनेशनल लेवल, उस हिसाब से ये अपने देश में डोमेस्टिक लॉ भी बनाते हैं कि वो कंपैटिबल हो वो इंटरनेशनल लॉ के साथ, और ये जो ट्रीटी और ऑब्लिगेशन है ये बरकरार रहे, ये सेम रहे. सो वेयर डोमेस्टिक लीगल प्रोसीडिंग्स फेल टू एड्रेस ह्यूमन राइट अब्यूजेस, जहाँ पे डोमेस्टिक जो लीगल प्रोसीडिंग है अपना देश में, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ये डोमेस्टिक की बात करते हैं, हम अपने देश की लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं. सो जब हम लोग डोमेस्टिक लीगल प्रोसीडिंग कहते हैं, तो डोमेस्टिक लीगल प्रोसीडिंग व्हाट वी टेंड टू मीन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड और लॉ ऑफ द कंट्री of a particular country itself. So whenever there is any form of abuse, mechanism and procedures for individual complaint is very much available. तो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, अब्यूज़ होगा, वो कंप्लेन करने के लिए या फिर प्रोसीजर्स भी है जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स में लागू होता है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो रिस्पेक्ट दिया जाता है. और अगर अब्यूज़ भी होता है तो जो इंटरनेशनल या नेशनल बॉडी है उस हिसाब से कैसे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, कैसे अब्यूज़ हुआ है, लॉ एनफोर्स होगा, लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा, और the guilty is to be brought to trial at the end of the day. So if there is any form of abuse occurring in the national level or international level, there are every forms of facilities, every forms of government or non-governmental organizations, there are bodies, there are instruments which tends to act upon and bring to justice the person who is committing that crime at the end of the day. So laws are implemented, laws are enforced which tend to provide justice to the person whose human rights are violated, and at the end of the day it promotes international peace, security and tranquility by promoting or upholding the whole ideologies of human rights itself. So this will all be today. This will all be for today itself. Thank you, class.